JB, first of all, I ask him to sorry for what, because I can't speak in Hindi and Marathi. So extremely sorry. Don't mistake me. Please give the excuse. I will take him only 2 minutes for him. The last 2 days I came from Chennai in Mumbai. And yesterday I visited the elephant cave from Mumbai. I am very interested to see on that place. My team and colleagues are going to visit from that elephant cave. Really, I like, very interested to see in this statue. But unfortunately, they are having the surprise. They are all Buddha statue. But they said RSS people are to change us about from Lord Shiva statue. Not only for here. In South India, Tirupati also, the Venkatachalapati is a Buddha statue only. But RSS people put a Namam in center to change that Tirupati Venkatachalapati. Brothers and sisters, I want to say some few words of Tamil, because Tamil is the oldest language from our world. And Telugu will say one word, Ennandri Kundra Uivundam Uivile, Chain Nandri Kundra Valarku, Endru Valluvan Paal. This poet wrote by Thiruvalluvar. What's the meaning of this poet? No. Whether any people go to the help of your life, your people not forget it of you in whole life. This is called Ennandri Kundra Uivundam Uivile, Chain Nandri Kundra Valarku. This is the oldest language from the world in Tamil that Thiruvalluvar wrote this. So, in 2000 years back, our family, our grandfather, our father, they are not getting freedom in India. Only one man giving the freedom of this people, that great national leader, Dr. Babasaheb. So, I humbly request with you all, you don't forget about that Babasaheb all over life. I am really very happy to standing up the father of land in Maharashtra. And everybody say, which country, which state, you all people are saying the motherland only. Motherland. But now I am very proud to say, I am standing up the father of land, Dr. Babasaheb in Maharashtra. I am very thankful because I come to speak about the Hindi and Marathi. But Tamil Nadu, I will speak in the Tamil language and started with 1 hour from the stage. I will speak about that from everything. But really I get the pain. I am not speaking about whether you will not try to understand what I am saying to you here. I am also that sir will be informed. I go to transfer of Hindi. I am humbly request sir that people are all educated. People know that English. Thoda English, there is no problem. I am speaking. People will try to understand what I am saying to you here. That is not a problem. So I am really very happy to stand on this stage because I am seeing my brothers and sisters. It's very happy. Now I'm going to list only one thing. That is, I have the one child, my daughter Sharvani. She's studying BSc IT, Information Technology in the famous college in Chennai. I'm always advising my child, whether if you go to the college, if you go to the class, you don't watch about that Brahmin peoples or forward community people. You don't watch that. You don't compare with whether Brahmin peoples or forward community. You just watch the UK people. You just watch the USA. You just watch the Japan people, what are doing the climate. Because you know people do everything. Last month, actually, the Sunita Williamson is on space. The all world people to watching the Sunita Williams, what it is landed from the earth. Then USA government and every day, every time is giving a lot of message from the people. I appreciate the USA government. We should take care, and Sunita Williams landed from there very carefully and landed. Still I'm watching that. This is a government. This is the best government of the world, the USA government. And at the same time, I'm watching the Indian channel now. At the same time, I'm watching that Sunita Williams, what time is landed from the land.
At the same time, watching that Indian channel, Times Now or something, our Home Minister Amit Shah is announced whether it's a time now we are going to build up that Sita Party temple, Mandir. I don't know what's going on there. The USA government is watching what is going on there. It's a technology. It's a very, very technology. At the same time, I'm watching that Indian Home Minister, he said, this is a right now time we are going to the Mandir of Sita. What's going on in India, I don't know about that. So I speak with my brothers and sisters. You all have the kids and childs. You know that. What is the Buddha? Buddha means what? It's a science. It's a maths. It's a history. It's a whole life out. That's a Buddha, no? Then why you are going to take that, it's an extraordinary stage and we are going to the conference. What? Simply, that's a matter. Buddha is our life. Buddha is the max. Buddha is the practice of life. Buddha is the leader. That's all. It's so good. So I'm seeing a lot of sisters there. So I humbly request you all, you take the kid from to learning, to teaching about the English. Whether we are going to competition of the UK kingdom only. Whether our people do competition with the US people only. You are not to compare with the Brahmins or a forward community. You don't compare with your kids. You inform that your kids. Whether you go to study about the life, watching about the UK and US. So I am very happy to see you all. I'm saying thanks to that stage. Imam Gyana Rashid Man and Ashok Saraswati Bole, Rakinan Sir, Chetan Kamdev, Professor Bharat Sivere, Advocate Dr. Kileni, Dr. Pradipa Agarwal, Professor Lakshman Mil, and Mrs. Pradipa Agarwal, Mrs. Sir. Thanks to our team giving the best opportunity to you. And really, I'm extremely sorry. I'm asking to sorry whether I'm not speaking in Hindi. So please excuse. Thanks to you all. Jai Hind. And I also want to say whether if you people that came from north or south, that's not a problem. If you people that came from north or south, that's not a problem. The people that came from east and western, that is not a problem. But that only one word you are going to continue with your all. Do you know that which word that word? This is the strongest word. It's a very, very strongest word. What do you know that? Jai Hind. Come on, bolo. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. सम्माननीय मंच, सामने बैठे हुए भाई तथा बहन, भारतीय बौद्धों की समस्या है। वैसे हम सब अपनी समस्याएं कौन सी है जानते तो है, लेकिन कहते हैं ना, पढ़ता पढ़ वड़त नहीं, समझते सब है, लेकिन हम अपना परिपाठ नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो चिंतन मैंने किया था उसको थोड़ा आपके सामने रखकर फिर जो मुझे लगती है कि बौद्धों की जो समस्याएं है और उनका हल जो है मैं आपके सामने रखूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर मानवीय व्यापार के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की भूमिका अपनाई थी। उनकी धर्म परिवर्तन में ये क्रांति समूचे अस्तित्व को गए अस्तित्व को रूपांतरित करने की क्रांति थी। और हम बार बार कहते हैं कि धर्म ये ईश्वर प्रणीत है, तो धम्म ये भगवान बौद्ध प्रणीत है। इसलिए स्पष्ट रूप से धर्म और धम्म ये हमारे मन में आता ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मांतर की ये जो घटना है, ऐतिहासिक घटना, एक लंबी शोषणोन्मुखी आचार पद्धति या प्रतिकार स्वरूप परिणाम है। चातुर्वर्ण में हमेशा मनुष्य को निचली जमीन पर रखा था, लेकिन बाबा साहब ने उसको ऊपर उठाकर ये जो ऊपर उठाना था ये हमारे लिए बौद्ध धर्म की देन है। ये बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, जैसे अभी बताया गया कि बहुत सारे धर्म
को अपनाने के लिए उनको विनती की गई, लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि इसी मिट्टी का धर्म हम अपनाएं, जिससे पौधा उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगना मुश्किल है। इसलिए ये बौद्ध धर्म इसी भूमि का है और बाबा साहब ने हमें ये धर्म दिया है, जो एक देसी धर्म था, बौद्ध धर्म। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रणीत बौद्ध धर्म, हम और कोई धर्म नहीं जानते, यही जानते हैं जो बाबा साहब ने हमें यह धर्म दिया है। और इसीलिए हम ये धर्म की फसल को, क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं कहते थे कि मैं एक ऐसा किसान हूँ जो फसल उगाता हूँ नीति की, और इसीलिए मन के अंदर जो दुर्गुण है उसको दूर हटाकर हम सदाचार को अपनाते हैं, और ऐसे धर्म को हमने अपनाना है। बौद्ध धर्म को हमें रक्षण करना है। भारतीय बौद्धों की समस्याओं को दूर रखना है, तो हमें सबसे पहले ये त्रिशरण पंचशील इनको अपनाना है। हम हमेशा अहम वंदामि बुद्धम ऐसे जब कहते हैं, तो ऐसे भगवान, ऐसे बुद्ध जो कल भी थे, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। कल के जो भगवान बुद्ध थे, जो राजकुमार के रूप में जिन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध बने थे, वो तो हमारे लिए वंदनीय है ही। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें धम्म दिया, वो हमारे लिए आज का बुद्ध है। और उन्होंने दी हुई जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उन्होंने दिए हुए जो नियम है, नियमावली है, वो हमारे लिए कल के बुद्ध है। इसलिए हम आज के बुद्ध को वंदन करते हैं, हम वंदामि बुद्धम ऐसा कहते हैं। और इसीलिए हमें बार बार, जैसे कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए धम्म संगीति का होना बहुत जरूरी है। जैसे ये अधिवेशन हो रहा है, अधिवेशन से हमारे जो मन के शंकाएं हैं वो दूर होती है। और मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि हमारा सीधा संबंध ज्ञान से है, इसलिए ऐसे संगीति से, ऐसे अधिवेशन से हमें अपना बौद्ध धर्म अपनाने से हमारी समस्याएं दूर हो जाती है। हमारी महिलाओं में जो अंधविश्वास से भरी हुई है, इन अंधविश्वासों को दूर करें तो भी हमारी ये जो हमारे लिए समस्याएं है, ये बहुत बड़ी है। हम भगवान बुद्ध को भी अपनाते हैं और हिंदू धर्म को भी अपनाते हैं। होली का त्योहार भी मनाते हैं, संक्रांत भी मनाते हैं, वट सावित्री की पूजा भी करते हैं, और दशहरे के दिन भगवान बुद्ध का धर्म भी मानते हैं। तो ये जो अंधविश्वास है, क्योंकि छोड़ा नहीं जाता। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, हम जिस बस्ती में रहते हैं, उस बस्ती को कैसे दूर करें? और फिर वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे कहते हैं कि दिवाली के दिन उनके घर में पूरन पोली बन गई है, हम क्यों नहीं बनाएंगे? तो इसीलिए इस प्रकार के बहाने बनाकर हमारी स्त्रियां अंधविश्वासों को संभाले रखी है। जैसे मैं कहती हूँ बार बार कि हमें अब उस सावित्री को छोड़ना चाहिए जो सत्यवान की थी, हमें उस सावित्री को अपनाना चाहिए जो ज्योतिबा की थी। हमें उन बौद्ध भिक्षुणियाँ जो थेरियाँ थी, बौद्ध भिक्षुणियों को इतने अच्छे मिसाल हमारे सामने है, जो थेरियाँ हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकती है। कि कितना उदाहरण दूँ, किसा गौतमी है, कुंडलकेशा है, पटाचारा है, मिगार माता है। जो मिगार माता, जो विशाखा, जिसने अपने ससुर जी से कहा था कि आप आगे जाइए, मेरा भिक्षु जब उनके घर में आए थे, भिक्षु जब भिक्षा लेने, तब मिगार माता ने मुंह फेर लिया था उसके ससुर ने। तब उसने मुंह पर जवाब दिया कि मेरे ससुर जी
बासी खाना खा रहे हैं, यानी अभी उनका विकास नहीं हुआ है। तो ऐसी स्त्री, मगर ऐसी भी स्त्री जिस विशाखा ने अपने ससुर की सेवा की और लोग उसे निगार माता कहने लगे, ऐसी स्त्री जो कहती तो है कि मेरे ससुर जी कैसे हैं, लेकिन ऐसी भी है जो अपने ससुर की सेवा करते हुए अपना नाम रोशन करती है। ऐसे कुंडलकेशा है जो इतनी सुंदर थी कि जिसका मन चोर पर लुब्ध हुआ था, लेकिन चोर है आखिर, उसने कहा कि चलो हम कहीं घूमने जाएंगे, ऊंचे ऊपर लेकर गया और उसका इरादा था कि सारे गहने लेना और उसको मार डालना। लेकिन वो इतनी होशियार थी कि उसने मीठी मीठी बातें करके वो समझ गई कि अब तो मुझे मरना है। फिर उसने कहा कि नहीं, आप मुझे, मैं आपको आलिंगन दूंगी, और उसने अपनी मूल्यवान जान बचाई। तो सबसे मुझे हंसी सबसे अच्छी जो लगती है वो पूर्णा, जो अनाथ पिंडक की दासी थी। वो जब पानी भरने जाती है सुबह ठंड में और देखती है कि एक साधु नहा रहा है ठंडे पानी में, तो वो सोचती है कि एक तो इतना ही ठंड है, ऊपर से ठंडे पानी में वो नहाता है, तो ऐसा क्यों? तो वो साधु कहता है कि मैं मेरे पापों को धो रहा हूँ। तो वो कहती है तो ऐसा है तो तुम्हारे पापों के साथ साथ पुण्य में बहता होगा, पुण्य में जाता रहा होगा। तो ऐसे हमारी जो थेरियाँ थी कि पानी में रहकर अगर सांप है, मछलियाँ हैं, वो अगर पुण्यवान नहीं बनते तो तुम इतने ठंडे पानी में खड़े रहकर अपने आप को पुण्यवान कैसे समझोगे? तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे बौद्ध धर्म में ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारी थेरियाँ हैं, हमारे अच्छे वचन हैं, जिनसे जो हम कहते हैं पंचशील है, हमारी 22 प्रतिज्ञा है, त्रिशरण है, त्रिशरण और पंच, जैसे सुबह हमारे बद्धे जी ने कहा था कि पंचशील का पालन करो तो हम कितने अच्छा आदमी बन सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं जो हमारे हैं, ये समस्या धीरे धीरे नष्ट होगी। हम ऐसा नहीं, कोई भी क्रांति एकदम से नहीं आ जाती है, समय तो लगता है, लेकिन हमें सब्र रखना होगा, हमें प्रयत्न करने होंगे कि ये भगवान बुद्ध का धम्म हमारे लिए कितना पोषक है, कितना अच्छा है, और इसीलिए हमें ये सक्षम बुलंद ऐसा धम्म अपनाना है, ना कि धर्म के आगे शरण में जाना है। चाहे कुछ भी हो, हमने जो धम्म का अभ्यास किया हो, बाबा साहब ने दिए हुए धम्म का अगर अपनाना है तो उसको अभ्यास करना है। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कोई उपवास करो, कोई व्रत रखो, तो ये सिर्फ हमें जान लेना चाहिए, और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर प्रणीत बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते, नहीं उसको सूक्ष्मता से उसकी पढ़ाई करते, तब तक हमें ये धर्म समझ में नहीं आएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि हमें ये इस धर्म को अपनाना हो तो ज़रूर उसको हमारे सामने, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं ना, हे च बुद्धा अतीता च हे च बुद्धा अनागता। तो ऐसे धर्म को अगर अपनाना है तो ये भगवान बुद्ध के अपनाकर, भगवान बुद्ध के विहारों में जाकर ऐसा आहार लेना है जिससे हमारा पोषण हो। आपने मुझे सुना, और इसलिए मैं वही कहती हूँ ना बार बार कि ये बहुत समस्याएं जो है ये आएगी, और समस्याएं बहुत कॉमन है, जाएगी भी, लेकिन हमें उसका दीर्घ रूप से उसको समझाना होगा, अपनाना होगा, और बौद्ध धर्म अपनाने से हमें हमारा विकास ही होगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये समस्याएं अगर दूर होगी तो हमें बौद्ध धर्म को अपनाना है। धन्यवाद।